Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious, and physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 19 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड सपोर्टर्स, आप सभी को मैंने बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो हॉल इफेक्ट पर होगा। सो हियर इज माय वीडियो ऑन द हॉल इफेक्ट। सो बेसिकली हॉल इफेक्ट होता क्या है? व्हाट इज द हॉल इफेक्ट? सो यू कैन सी अ डायग्राम ऑन योर स्क्रीन in which there is a conductor slab. This is the conductor slab. If we are applying magnetic field perpendicular to this slab, like magnetic field is in this direction, and due to some cell we are providing the current which is in this direction, the slab having thickness thickness T and the width D. Then the voltage will generate in the perpendicular side of that magnetic field of current. That voltage will be the Hall voltage, and the generating of voltage, this type of effect is called the Hall effect. Why this Hall voltage is produced? The Hall voltage is produced by charge accumulation on side walls, and that charge accumulation balances Lorentz force. What is Lorentz force? So you can see the formula on your left, which is the formula of Lorentz force, which is F equals to Q E plus V cross B. E is for electric field, V is for velocity of charged particle, and B is for magnetic field. So what does charge accumulation do? चार्ज जो एक्यूमुलेट हो जाता है, मीन्स इकट्ठा हो जाता है, वो क्या करता है? सो दैट चार्ज एक्यूमुलेशन इंक्रीजेस रेजिस्टेंस. ओके, इंक्रीजेस रेजिस्टेंस. Okay, moving ahead, we are coming to the history of that Hall effect. Who discovered that? So the Hall effect was discovered by Edwin Hall in 1879, and the quantum Hall effect was discovered in 1975. So some introduction, we'll firstly study about the Hall effect. So it is all the Hall effect describes the behavior of the free carriers in a semiconductor when applying an electric as well as magnetic field. One important characterization tool in the measurement of the Hall effect to measure mobilities and carrier concentrations in a given semiconductor material. In this experiment, we will make such measurements observing the Hall effect for one semiconductor sample. The temperature dependence of the Hall coefficient and resistivity will allow us to distinguish between p-type and n-type samples and to calculate the electron and Hall mobilities and constructions. So, अब हम समझते हैं हॉल इफेक्ट को। बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको याद हो जाएगा कि हॉल इफेक्ट क्या है, कैसे जनरेट होता है, हॉल वोल्टेज क्या है, और क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमें करना होता है टू गेट दैट होल वोल्टेज. तो दिस इज द सेम डायग्राम वी हैव सीन. सो बेसिकली the Hall effect describes the behavior of the free carriers in a semiconductor when applying an electric as well as magnetic field. जब भी हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी सेमीकंडक्टर पर या किसी कंडक्टर पर, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर पर अप्लाई करेंगे, तो आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं. तो वो चार्ज कैरियर्स क्या रिएक्ट करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, वही सब हॉल इफेक्ट हमें बताता है. तो इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक सेमीकंडक्टर स्लैब है या बार है जिसका क्रॉस सेक्शन लेंथ L है, और यहाँ पे हम एक वोल्टेज Vx अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ से आप इस सेल से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा हमारे पास I, और मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, सपोज Z डायरेक्शन में. ठीक है,
तो देखिए एक्स डायरेक्शन में हमारा वोल्टेज है जो हमने अप्लाई किया है, यहाँ पे बैटरी लगाई थी। जेड डायरेक्शन में हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। तो होल्स क्या करेंगे, होल्स विल मूव इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्वियसली होल्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाएंगे। एंड द मैग्नेटिक फील्ड causes a force to act on mobile particles in a direction dictated by the right hand rule। तो राइट हैंड रूल आप सभी ने पढ़ा होगा 11-12 स्टैंडर्ड में, हम वही रूल काम में लेंगे। अगर आपका करंट एक्स डायरेक्शन में है तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में डिक्टेट करेगा, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में है तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में डिक्टेट करेगा। तो ऑब्वियसली राइट हैंड रूल से हमें जो पता चलता है कि हमारा जो फोर्स होगा वो वाई डायरेक्शन में होगा। ओके तो ये जो फोर्स हमारा वाई डायरेक्शन में लग रहा है, इसी वजह से होल्स जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेडी स्टेट में ये फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा ये फोर्स बैलेंस किया जाता है। और इस वजह से अगर हम एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं वाई डायरेक्शन में ई वाई, तो होल्स पर किसी भी तरह का कोई नेट फोर्स नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोई फोर्स नहीं होगा तो इसके रिजल्टेंट एक वोल्टेज जनरेट होगा जो किसी भी हाई इंपीडेंस वोल्ट मीटर से हम मेजर कर सकते हैं। वो जो वोल्टेज जनरेट होगा VH, वही हॉल वोल्टेज होगा। तो सभी साइन कन्वेंशंस आपको इस डायग्राम में गिवन है, तो आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हॉल वोल्टेज जनरेट हुआ। ये तो थी हॉल्स की बात, क्योंकि हॉल्स की वजह से वो वोल्टेज जनरेट हुआ तो हमने उसको हॉल वोल्टेज भी बोला। और अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे हॉल वोल्टेज जनरेट करेंगे। सो द इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ऑब्वियसली इफ द होल्स आर मूविंग टू द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन देन द इलेक्ट्रॉन विल ट्रेवल इन द अपोजिट डायरेक्शन, सो ऑब्वियसली दे विल ट्रेवल इन द negative x direction. Therefore, the force Fy is in positive y direction and the balancing electric field Ey now has opposite sign. So the whole voltage will also possess a negative sign. So we will get a negative whole voltage और हमें electrons की वजह से एक negative whole voltage भी मिलता है। So as more and more carriers are deflected, the accumulation of charge produces a Hall field, that is EH, that exerts a force opposite to the Lorentz force. So basically हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है Fe equals to QE, and equilibrium is reached when these two opposing forces are equal in magnitude, which allow us to determine the drift speed which is QBVD equals to QE। यहाँ पे VD जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड है, यहाँ से आप VD की वैल्यू निकाल सकते हैं। E अपॉन B आएगा, E अपॉन B जो है उसको हम VH अपॉन BD भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड वो वोल्टेज अपॉन लेंथ होता ही है, आपने पढ़ाई है, तो हम E की जगह VH अपॉन B इंटू D लिख रहे हैं। और हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर में करंट का फॉर्मूला ये होता है NEVDA, तो यहाँ से आपने VD यानी ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू निकाल ली और इस वैल्यू को आपने लास्ट इक्वेशन में रख देना है, तो आपके पास ये वैल्यू आती है। एंड इट्स कंपल्सरी टू डिफाइन द हॉल कोएफिशिएंट। So the Hall coefficient, the formula for the Hall coefficient is this one, and this is the important formula, RH equals to 1 upon NE। ये फॉर्मूला आपको बार बार काम में लेना है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं based on this formula. So some more formulas we are getting, which are those? Those are VH upon I equals to BD upon ANE, which is equals to R. R is resistance of rectangular strip. R equals to rho D over A, rho is B over NE, sigma is N over B, जहाँ पे सिग्मा क्या आपकी कंडक्टिविटी हो गई, तो यहाँ से आप मोबिलिटी ऑफ चार्ज भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आपका मोबिलिटी का फॉर्मूला आ गया म्यू इक्वल्स टू सिग्मा ओवर NE। तो ये सारे फॉर्मूलाज हमें काम में लेने हैं, तो इन सभी फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन द एंड सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। So the real Hall effect is obviously for semiconductors. So why semiconductors? Because semiconductors has the ideal number of charge carriers.
and whenever we increase the temperature, charge carriers will increase. So semiconductors हमें choose करना specific रहता है whether we are working with Hall voltage or the Hall effect we have to get. So what we can learn the sign of charge carrier, we can find out the charge carrier density, we can find out the charge carrier mobility, we can find out, and the energy gap in its semiconductors we can find out. So Hall effect हमें ये सब चीजें बताता है, इसलिए Hall effect is obviously important. मूविंग अहेड, हॉल वोल्टेज की बात करते हैं. हमने पढ़ा कि हॉल वोल्टेज कैसे जनरेट होता है. तो अगर आप सिंपल कंडक्टर की बात करें तो आप हॉल वोल्टेज का ये फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज VH इक्वल्स टू माइनस IB ओवर NED इक्वल्स टू RH ओवर IVD, क्योंकि 1/NE जो होता है, ये जो आपका 1/NE है, ये RH होता है. अभी हम पढ़ के आए, यहाँ पे N जो हो गया करियर डेंसिटी, D कंडक्टर लेंथ, RH इज ऑब्वियसली अ हॉल कोएफिशिएंट, एंड कंडक्टर्स के लिए VH इज प्रोपोर्शनल टू B, क्योंकि हॉल वोल्टेज जो है उतना ही जनरेट होगा जितना आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे. ठीक है. सो फॉर अ होल सेंसर गॉस मीटर प्रॉब हम यूज करते हैं, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, आपको आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा. ये हॉल इफेक्ट सेंसर्स भी कहलाते हैं. और जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर्स में क्योंकि दो चार्ज कैरियर्स होते हैं, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो जो हॉल कोएफिशिएंट होता है RH वो होता है माइनस NME स्क्वायर प्लस PMH स्क्वायर ओवर E, NME स्क्वायर प्लस PMH स्क्वायर का होल स्क्वायर. यहाँ पे N हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और N यहाँ पे P हो गया नंबर ऑफ होल्स, ME हो गया द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड MH हो गया द मास ऑफ होल्स, और द रेस्ट थिंग्स यू नो. And however, for large magnetic fields, if we are applying large magnetic field, then we will get this type of formula. ये सभी फॉर्मूले हमें करियर डेंसिटी निकालने में भी हेल्प करेंगे. सो बेसिकली हमने ये पढ़ा कि हॉल इफेक्ट क्या होता है. हमने हॉल वोल्टेज के लिए कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के फॉर्मूले पढ़े और हॉल कोएफिशिएंट भी देखा. अब हम देखते हैं हॉल इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, हम कहाँ यूज करेंगे इसे. So first of all, we can determine the N type of semiconductor. हमारा semiconductor जो हमें अवेलेबल है वो P टाइप है या N टाइप है, तो हम N टाइप को डिक्टेट कर सकते हैं. तो हमें पता चल जाएगा कि अगर ये N टाइप है तो ऑब्वियसली N टाइप, एंड अगर ये नहीं है तो ये P टाइप सेमीकंडक्टर है. So for N type semiconductor the Hall coefficient is negative, whereas for a P type semiconductor it is positive. तो हम लोग पता कर सकते हैं कि N type semiconductor है या नहीं. Second, we can calculate the carrier concentration obviously through this formula, N equals to 1 over E RH. हम mobility determine कर सकते हैं obviously, this is the formula. हम magnetic flux density भी determine कर सकते हैं using this formula. All these formulas we will use whether solving the questions, so please keep in mind all these formulas and make your own short notes so that you can write all the formulas on the same page and you can learn them easily. And at last, we'll do some questions. So this question is from CSIR December 2012. Question 1, it is saying a magnetic field sensor based on the Hall effect is to be fabricated by implanting as into a silicon film of thickness. The specifications require a magnetic field sensitivity of 500 millivolt per Tesla at an excitation current of 1 milliampere. The implantation is to be adjusted such that the average carrier density after activation is. हमें इस क्वेश्चन में carrier density फाइंड आउट करना है. तो carrier density का फॉर्मूला आप जानते हैं, जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज. हमें न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. तो सबसे पहले हम हॉल वोल्टेज टू मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हॉल वोल्टेज टू मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन क्या होता है ये मैं आपको बता देती हूँ. दैट इज द रेशियो बिटवीन VH एंड B, जिसे हम हॉल वोल्टेज टू मैग्नेटिक फील्ड रेडिएशन भी बोलते हैं. सो ये है 500 मिली वोल्ट पर टेस्ला दिया हुआ था. करंट हमें दिया हुआ था 1 मिली एम्पियर, थिकनेस सैंपल का था 1 माइक्रोन, एंड सो हमारे पास फॉर्मूला है होल वोल्टेज के लिए, दैट इज VH इक्वल्स टू IB ओवर TNE. यहाँ से हम कंसंट्रेशन निकालना है तो N की वैल्यू निकालना है, तो बाकी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दीजिए जो भी क्वेश्चन में गिवन थी, और दिस इज द राइट आंसर व्हिच इज 1.25 into 10 to the power 22 per meter cube. So correct option is option number B. Okay, next question.
Question number 2, this is from CSI and December 2016. Important question and easy as well. A thin rectangular conducting plate of length A and width B is placed in the XY plane in two different orientations. जो कि आपको डायग्राम में शो हो रहे होंगे, ये दो डिफरेंट ओरिएंटेशंस है. जब यहाँ पे विड्थ A थी और ब्रेड्थ B थी, तो यहाँ पर चेंज हो गया. आपकी बार यहाँ पे विड्थ B है और ब्रेड्थ इसकी A है. इनके बीच में जो था वोल्टेज V1 था, बट यहाँ पे वोल्टेज V2 है. सो सम टू डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस. इन बोथ केसेस अ मैग्नेटिक फील्ड B is applied in Z direction and current flows in X direction due to applied voltage V. So if the whole voltage across the y direction in two cases satisfy V2 equals to 2V1, so the ratio A ratio B must be. Easy question है. अगर आपको V2 और V1 में रिलेशन दे रखा है, रेशियो दे रखा है, V2 रेशियो V1 is 2:1, तो A रेशियो B आपको पूछा है, तो we can calculate the values as since Hall voltage is given by VH equals to IB upon rho W and W is the width of conducting plate. So for case 1 we can write V equals to I1 R1 ना. So R1 we know rho L1 over A1, जहाँ पे जो आपका रो होता है वो रेजिस्टिविटी शो करता है. तो L लेंथ A है फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और जो एरिया हो गया A क्रॉस B हो गया, तो A से A कट जाएगा फ्रेंड्स, तो रो ओवर B बचेगा ओनली. तो आप इस R1 की वैल्यू यहाँ पे V में पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी I1 रो ओवर B. यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी. जब आपके पास करंट की वैल्यू है तो आप होल वोल्टेज की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि यह है फॉर्मूला I1 B ओवर रो W. और W जो है आपकी विड्थ है, तो फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका जो विड्थ है वो है A ऑब्वियसली. तो फर्स्ट वाले कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपका विड्थ A है, तो W A हो गया. अब हम सेकंड केस में सेम वर्क करेंगे, R2 निकालेंगे और जिससे V निकालेंगे, करंट हमें मिलेगा और यहाँ से हॉल वोल्टेज निकाल लेंगे, और विड्थ की वैल्यू आपकी बार क्या होगी, B होगी. ये देखिए, तो V2 इक्वल टू 2V1 हम करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको A और B में जो है रिलेशन पता चल जाएगा, जो कि होगा A रेशियो B इक्वल्स टू √2:1. इट वाज इजी ना. Moving ahead, next question is question number 3 from CSI NET December 2017. Consider a two-dimensional material of length L and width W subjected to a constant magnetic field B applied perpendicular to it. The number of charge carriers per unit area may be expressed as N equals to K mod QB over 2 pi H cut, where K is a positive real number and Q is the carrier charge. Then the whole resistivity rho XY is, and there are 4 options. Read this question and let us have 10 seconds and you will try to solve this question. और 10 सेकेंड के बाद मैं आपको इसका आंसर दिखाती हूँ. तो देखिए, क्वेश्चन ऐसा है कि टू डायमेंशनल मटेरियल है जिसका लेंथ L है, विड्थ B है, इसको एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड हमने इस मटेरियल के परपेंडिकुलर अप्लाई किया है. अगर आपको चार्ज करियर पर यूनिट एरिया जो है वो रिलेशन दे रखा है, इक्वल्स टू K QB और 2 pi H कट, जहाँ पे आपको बता दिया कि Q कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, K कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और Q करियर चार्ज है, और आपको बताना है हॉल रेजिस्टिविटी रॉ क्या होगा. 4 ऑप्शंस हैं. तो देखिए, मैं आपको आंसर दिखा देती हूँ. सो इट वाज 2 लाइनर क्वेश्चन, सो 2 लाइन का ही आंसर है. तो आपको ये गिवन है N इक्वल्स टू K QB और 2 pi H कट. हॉल रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है रो XY इक्वल्स टू B ओवर NE. ये फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था. तो B और N की वैल्यू आपको गिवन है, और E जो है वो चार्ज है. जब आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको ये 2 pi H कट ओवर K Q स्क्वायर मिलेगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो थर्ड वाला सही हो जाएगा. एंड इट वाज एन इजी क्वेश्चन. Okay, the next question is from GET 2010. The Hall coefficient RH of sodium depends on, and there are 4 options. तो सोडियम का हॉल कोफिशिएंट किस पे डिपेंड करेगा? इफेक्टिव चार्ज, करियर मास एंड करियर डेंसिटी पर, चार्ज करियर डेंसिटी और रिलैक्सेशन टाइम पर, सिर्फ चार्ज करियर डेंसिटी पर, या इफेक्टिव चार्ज करियर मास पर.
तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा सी। सिर्फ चार्ज करियर डेंसिटी पर ही डिपेंड करेगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आपने फॉर्मूला देखा है, RH का फॉर्मूला क्या होता है? RH का फॉर्मूला होता है RH इक्वल्स टू 1/n E। तो n जो है वो आपकी चार्ज डेंसिटी है, E फॉर इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर करियर मास या रिलैक्सेशन टाइम इसकी तो कोई बात ही नहीं हो रही, तो ऑब्वियसली सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द हॉल वोल्टेज फॉर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव। किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का हॉल वोल्टेज नेगेटिव है, क्यों? और 4 ऑप्शन है। तो ये तो आपको पता होगा क्योंकि हमने अभी इस पे डिस्कस किया है। ये जो है गेट का क्वेश्चन है और इसका आंसर सी होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब हॉल वोल्टेज किसी सेमीकंडक्टर का नेगेटिव होता है तो अब आप जानते हैं, मैंने आपको बताया है कि ऐसा सेमीकंडक्टर जो है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा क्योंकि उसका हॉल वोल्टेज नेगेटिव है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या ज्यादा होते हैं, होल ज्यादा होते हैं या इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो जो म्यू एन की वैल्यू है वो हमेशा म्यू एच से ज्यादा ही होगी। तो ऑब्वियसली सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के हम क्वेश्चंस करते हैं हॉल इफेक्ट में। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इजी है। Consider a metal which obeys the Sommerfeld model exactly. If EF is Fermi energy of matter at T equals to 0 Kelvin and RH is its Hall coefficient, which of the following statement is correct? And there are 4 options. तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये गेट 2016 का क्वेश्चन है एंड इसमें सी आंसर होगा क्योंकि आपको पता है हॉल कोफिशिएंट RH का वैल्यू होता है 1/NE और जो आपका फर्मी एनर्जी होता है, आप देखते हैं 3D की बात कर रहे हैं तो ये हमने एक अलग से वीडियो भी बनाया है इसके लिए और आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। तो अब आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा। तो यहाँ से आप इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो आपको जो है हॉल कोफिशिएंट और फर्मी एनर्जी में रिलेशन मिलेगा ये। तो ऑब्वियसली जो आपका आंसर होगा वो सी सही होगा। So RH is proportional to EF raised to the power 3/2 and this is all for today. So obviously if you do like the content or if you like the video, please press the like button and bell icon. Do subscribe so that you can get a message of the fresh videos. Thank you for watching. Please share to your friends. Keep studying. See you in my next video. Thank you.